Okay, now here they have shown the um, interneuron and a sensory neuron. Sensory neuron is a type of neuron, and interneuron is also a type of neuron. And this one is a motor neuron. So three types of neurons are there: motor, inter, and sensory neuron. On the basis of their function, there are three types of neurons. And sensory conduct sensory information, nerve impulses from the receptors to the CNS. Receptors are what? Eye, skin, nose. So from the receptor towards the CNS, sensory neurons have one dendrite and one axon. You can see this in the picture. How many axons and how many dendrites? That is very clear. Interneurons from the interneuron, they do what? They conduct the nerve impulses. वो brain से spinal cord. Why do we call them inter? Means ये दोनों के दरमियान एक राब्ता बनाते हैं. It makes a relation, so we call them inter. From brain and spinal cord, from brain to they form the brain and spinal cord. No, actually they form, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं. और दे रिसीव इंफॉर्मेशन, और इनका काम क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं. इट डज़ नॉट हेल्प्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट फॉर्म्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस लेके नहीं आते, लेके नहीं जाते. ये क्या करते हैं? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं. क्यों? क्योंकि यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे बना हुआ है? इंटरन्यूरॉन से. और ये क्या करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं. मोटर न्यूरॉन्स, दे हैव मेनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. इनके डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. नाउ सॉरी, इंटरन्यूरॉन्स हैव मेनी dendrites and axons. Now the motor neurons, they carry the information from the interneurons to the muscle or the glands or the effectors. इनका क्या काम होता है? ये इंटरन्यूरॉन से, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेते हैं इन्फॉर्मेशन और इफेक्टर्स को दे देते हैं. दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन. जो अभी हमने स्टडी किया था वो मोटर न्यूरॉन की ही एग्जांपल थी. डेंड्राइट्स उसमें बहुत ज़्यादा थे बट एक्सॉन खाली एक ही था. Nerve, it means the union of several nerves which are made up of lipid based on the property of axons. Nerves are of two types: sensory nerves, जो कि they contain the axon of sensory neurons. The motor nerves contain the axons of the motor neurons. And the mixed nerves, they contain the axons of both the sensory and motor neurons. Axons और motor neurons, एक्सॉन्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया. वो जो स्ट्रक्चर्स थे जो कि एक लाइन की और एक रोप की शेप में थे, दे आर नोन एज द एक्सॉन्स. और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो उस यानी मोटर नर्व्स के अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर वाले एक्सॉन्स होते हैं. और मिक्स जो होती है उसमें दोनों होते हैं. सेंसरी में खाली सेंसरी वाले एक्सॉन्स होते हैं. Now the details of the central and peripheral systems. Central nervous system, as we all know that there are two um, parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord. All life activities are because of the brain. The brain is enclosed in a bony cranium, like it's a part of skull. तो वो cranium के inside the cranium, the brain is situated inside the cranium and is covered with three layer of meninges. Meninges, they do what? They provide they protect the brain, and they also provide nutrients and oxygen to the brain tissue through their capillaries. The brain contains fluid-filled ventricles that are continuous with the central canal of the spinal cord. Ventricles होते हैं जो कि fluid filled होते हैं, and that is actually known as the cerebrospinal fluid, जो कि spinal cord में भी होता है और brain में भी होता है. The divisions of brain, there are three main regions of the brain of the human body and the other vertebrates: the forebrain, midbrain, and the hindbrain. Now looking at the diagram, forebrain is the largest area of the brain. कैसे होता है ये largest area of the brain? See, this is cerebrum, thalamus, and hypothalamus. These are the three parts of the brains. The cerebrum, the thalamus, and the hypothalamus, three parts of the brains. And actually, it is like this.
the cerebrum, the thalamus and the hypothalamus. This is your forebrain, and the cerebrum, okay, the area which is now highlighted is the forebrain. So as you can clearly see that this is the largest part of the brain. Forebrain में होता क्या है, it is highly developed also. So thalamus, what is thalamus? The first part they are going to discuss is the thalamus. It lies just below the cerebrum. So this is the cerebrum and the thalamus lies just below the cerebrum. So first of all, the location, um, you make a heading location and write that the location of the thalamus is just below the cerebrum. Now the function, make a heading function. It serves as a relay center between various parts of the brain and the spinal cord. It also receives and modifies sensory impulses, except nose. It does not. It is not concerned with the impulses related to the nose. It is, but it is related to the impulses from different sensory organs before they travel to the cerebrum. See, actually this is the direction of the nerve impulse. ये nerve impulse ऐसे आती है. So actually first it goes towards the thalamus before the cerebrum. तो cerebrum में तो पहले नहीं आएगी ना, पहले thalamus में आएगी, ठीक है. So this is what they are explaining. ओके ये उन्होंने आपको बताया कि डायरेक्शन इसका फंक्शन क्या होता है. एंड इट डज व्हाट, इट रिसीव्स एंड मॉडिफाइज, दो काम करता है. इट रिसीव्स एंड मॉडिफाइज द इम्पल्सेस विच दे आर रिसीविंग फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स बिफोर द ट्रेवल टू द सेरिब्रम. सेरिब्रम को काम करके देता है. थैलेमस क्या करता है, सेरिब्रम को काम करके देता है और सारी की सारी जो नर्व इम्पल्सेस आती हैं उनको रिसीव करता है, मॉडिफाई करता है और सेरिब्रम को भेज देता है. ये इसका काम है. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, सेकेंड पॉइंट नंबर 2, इसका आप सेकेंड पॉइंट बनाओगे. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पेन परसेप्शन, यानी तकलीफ जब दर्द होता है तो पता कैसे चलता है, ब्रेन का थैलेमस हमें इन्फॉर्म करता है कि दर्द हो रहा है. एंड कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अवेकनिंग, जो बेहोशी और जागना होता है, सोना जागना वगैरह, ये कॉन्शियसनेस से भी रिलेटेड होता है. कौन, थैलेमस. नाउ कम्स द हाइपोथैलेमस. द हाइपोथैलेमस डज what, which area is the hypothalamus? This area is the hypothalamus. And what is the function? It lies, now first of all location, it lies above the midbrain. कहाँ है midbrain? ये है हमारे पास midbrain. it lies, ये midbrain के बिल्कुल ऊपर होता है. पार्ट ऑफ किसका है, forebrain का पार्ट है. And it does what, it is related to the it is related to the वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. क्या करता है, ये रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है सेंसरी इम्पल्सेस. नहीं, इट वाज अबाउट द थैलेमस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपोथैलेमस. इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन आलमंड. कितना छोटा सा है थैलेमस, आप लोग देख लो. ये एक आलमंड का साइज़ है बिल्कुल. और इससे होता क्या है हमारे पास, ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से. फर्स्ट फंक्शन इसका ये है. सेकंड क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की, सी पिट्यूटरी ग्लैंड किधर है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये इसकी सिक्रीशंस को, हाइपोथैलेमस इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है. और क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली जो बाद में आपको पता चलेगा कि इसका फंक्शन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम में होता है. तो एक्चुअली ये यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है. तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक करता है. और ये रेज, पेन, प्लेजर, सोरो, ये इस तरह के इमोशंस को कंट्रोल करता है. कौन, हाइपोथैलेमस. थर्ड इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, सेरिब्रम, जिसकी बात हमने अभी तक नहीं की थी. ये जो सारा वाइट पोर्शन है ये वाला, और उसके अलावा इसके लोब्स होते हैं. लोब्स का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. अब इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ.
frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and the temporal lobe। ये चारों जो पार्ट्स हैं ये किसके पार्ट है? ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट है। इनके फंक्शंस क्या है? अच्छा, इनके फंक्शंस जो हैं वो हम लोग अभी बाद में करते हैं। फर्स्ट वील डिस्कस द मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है it is present between the hind brain and the forebrain। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में कौन होता है? मिड ब्रेन। ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ ये मिड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में है। फोर ब्रेन ये सारा ये है और ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन होता है। एंड व्हाट इज़ द यूज़? एक्चुअली इट कनेक्ट्स द टू। मिड ब्रेन इसको कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये सेरिब्रम को और हाइंड क्योंकि ये हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। और ये क्या करता है? इट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, यानी क्या हम देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन, और वो अप्रोप्रिएट पार्ट को भेजता है। कहाँ पे? अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन को भेजता है। मिड ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। सुन, ऑडिटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू ईयर रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर, और खड़े हम कैसे होते हैं उसको कंट्रोल करता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ द लोब्स, they are mentioned in your book in the form of a table. Frontal lobe controls the motor functions, permits conscious control of skeletal muscles and coordinates movements involved in speech। ये फ्रंटल लोब का फंक्शन है। पेरिटियल लोब जो होता है वो सेंसरी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन, यानी सेंसरी एरिया से रिलेटेड होता है ये, और वो स्किन से जो हमें फीलिंग्स आती हैं, जो इम्पल्सेस, जो मैसेजेस सेंड होते हैं, उनको रिसीव करता है। ऑसिपिटल जो होता है वो एनालाइज करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन और रिसीव भी करता है, और जो टेम्पोरल होता है वो कंसर्न होता है हियरिंग और स्मेल से। तो एक्चुअली ये चारों जो है ये सेंसरी वाले पोर्शंस होते हैं जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। हिपोकैम्पस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज़ डीप इन द सेरिब्रम। सेरिब्रम हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन इट इज़ डीप इन द it is deep inside the cerebrum। No, we have already studied this, like frontal, parietal, occipital, temporal lobe, ये सब cerebrum के ही पार्ट्स हैं। और जिन लोगों का हिपोकैम्पस डैमेज हो जाता है एक्चुअली उनके लिए इशू ये होता है कि दे कैन रिमेंबर थिंग्स विच हैव अकर्ड बिफोर द डैमेज, और बाद की चीज़ें उनको याद नहीं होती, यानी जो हम लोग कहते हैं मेमोरी लॉस, वो हो जाता है इन केस ऑफ द डैमेज ऑफ हिपोकैम्पस। Now coming towards the parts of the brain again, the hind brain. Hind brain consists of three major parts. Number first is the medulla oblongata, then the cerebellum and then the pons। ठीक है, ये देखो आप लोग, ये है आपके पास हाइंड ब्रेन, इसमें सेरिबेलम यहाँ है, पॉन्स यहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो यहाँ है। ये हमारे पास पॉन्स हैं, ये ये जो है हमारे पास पॉन्स हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये एरिया जो है ये सेरिबेलम है। ठीक है, these are the pons and this is the medulla oblongata। अंडरस्टैंड नाउ? मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर है, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास, और ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर लाई करता है। दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड जो नीचे एलोंगेट हुई भी होती है। और व्हाट इज़ द रीज़न? इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग। व्हाट इज़ द फंक्शन? इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह। इट कंट्रोल्स मैनी रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग, कफिंग, ये और भी चीज़ें कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता और वो एकदम से हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, और इसकी रिफ्लेक्स एक्शन हम जब पढ़ेंगे तब वो डिटेल में देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या होता है।
Information that passes between the spinal cord and the rest of the brain passes through the medulla oblongata. Whatever is going inside the brain, it is passing what? It is passing the medulla oblongata. समझ आइए? तो जो कुछ भी स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से पास होके ऊपर जाता है. सेरिबेलम इज बिहाइंड द मेड्यूला. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पीछे क्या है? सेरिबेलम. ये है सेरिबेलम हमारे पास, ये सेरिबेलम. एंड व्हाट इज द फंक्शन? इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स, यानी हमारी जो मसल की मूवमेंट्स हो रही होती है कौन कोऑर्डिनेट करता है? सेरिबेलम. पॉन्स क्या है? इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द मेड्यूला. ये हमारे पास पॉन्स है और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर होते हैं. और ये व्हाट इज़ द फंक्शन? इट असिस्ट्स मेड्यूला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कंट्रोल में. इट आल्सो सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड. सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक कनेक्शन होता है पॉन्स, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ये आपके पास है सेरिबेलम और ये आपके पास है स्पाइनल कॉर्ड. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया. ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये इन दोनों के बीच में एज अ कनेक्शन सर्व करता है. सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन कौन होता है? पॉन्स. ठीक है. नाउ these were the functions of the डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स में आ जाते हैं. लोकेशन आपको पता होनी चाहिए फॉर लॉन्ग आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. प्लस ये आपके शॉर्ट आंसर्स में फंक्शंस इनके आ सकते हैं कि किसका क्या एरिया है, किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या फंक्शन ही इसके अंदर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.